Okay, continuing with the topic, we have goals of system software. अब system software exactly जरूरी क्यों होता है? System software is needed because it provides a functionality, ऐसा feature which allows different programmers to write the programs in the way they want, and it also makes sure that the system software and the application software goes hand in hand, so that there is no problem while running that application. So when we talk about system program and system programming, तो दोनों का difference क्या होता है? See, system programming is where you write instructions and create a program or say create a base on which you can run different applications. So जो instructions लिख के आपको base बनाते हो उसको बोलते हैं system programming, कि आपने एक system बनाया जिसपे different applications चल सकते हैं, और जो applications आप चलाते हो obviously वो applications आपको बनाने पड़ेंगे. So these system programs are nothing but computer programs on which further user defined applications can run. सिस्टम प्रोग्रामिंग इज कि आप सिस्टम को कैसे डिजाइन कर रहे हो, कि इसमें और क्या क्या चीजें होंगी इंटरनली, क्या क्या सपोर्ट रहेगा, क्या क्या फीचर्स रहेगा. सो वंस यू डिफाइन दैट सिस्टम, then you have different applications which are running on it. Those are nothing but system programs. कि system के लिए हमने वो programs, वो applications बनाए हैं, उस applications पे फिर हम external applications भी link कर सकते हैं या run कर सकते हैं. So I hope the difference is clear between system program and system programming. Next, we'll have an introduction to language processors. अब language processors क्यों जरूरी होते हैं? Language processors are needed so that they can translate the human readable languages into machine languages. As a user, as a human, we type in the language which we understand, but the computers do not understand that language. So अपने instructions को binary language में हो या machine language में हो, अपने instructions को वो machine language में convert करने के लिए we need different language processors. So these language processors consists of assemblers, compilers and interpreters. See, this is the diagram which is given, that is the application domain and the execution domain, और इसके बीच में एक semantic gap दिया है. So this semantic gap is nothing but the rules which have been defined for converting that language, that is human readable language, into machine language. And when executing it, you have to make sure that all the instructions or all the restrictions that has been put in the readable language is equally converted to that machine language. यानी कुछ भी गड़बड़ नहीं होना चाहिए, कुछ भी error इसमें generate नहीं होना चाहिए. So there are different domains. जैसे हमने last इसमें देखा था, this is a detailed domain. We have execution domain, execution gap, PL domain, that is programming language domain, specification gap and application domain. अभी ये डोमेन्स के जो गैप है उसको फिल करने के लिए हमारे पास बीच में ये एग्जीक्यूशन गैप एंड स्पेसिफिकेशन गैप है. नाउ एग्जीक्यूशन डोमेन टेल्स दैट द एग्जीक्यूशन गैप जो होता है कि प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में क्या लिखा है, कैसे कन्वर्ट करना है, कैसे रूल्स है, क्या है, वो सारे टेक्निक्स इसमें मेंशन होते हैं. एंड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज डोमेन से एप्लीकेशन डोमेन के बीच में स्पेसिफिकेशन गैप. स्पेसिफिकेशन मतलब the language is specify कि what type of applications can run, what software is needed and how they are going to be supported. So this is how various programming languages domains are covered with the help of gaps. तो ये domain, language domain जरूरी क्यों होता है? What is the need? It helps in minimizing the errors caused by the semantic gaps. It helps in bridging the gap between different domains and find out if there are any errors in any domain. यानी एरर्स फाइंड करने के लिए, क्योंकि हम रूल्स एस्टेब्लिश करते हैं, हम क्रॉस चेक करते हैं, तो उससे पता चलता है कि कहीं पे कुछ प्रॉब्लम होने का चांसेस है या नहीं. Next, we are studying what are language processors. Now, language processor is nothing but a program that performs tasks such as translating, interpreting, required for processing a specified programming language. So, language processors का काम क्या होता है? ये जो हम बात करें assemblers, compilers, इसकी interpreter की, इनका काम होता है ट्रांसलेट करना, कन्वर्ट करना. जैसे मैंने बोला था, हाई लेवल लैंग्वेज को लो लेवल लैंग्वेज, दैट इज ह्यूमन रीडेबल लैंग्वेज को मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट करना. सो जो ओरिजिनल प्रोग्राम हम पास करते हैं उसको हम सोर्स प्रोग्राम बोलते हैं, जिसको कन्वर्ट होके जो मशीन पे एग्जीक्यूट होने वाला होता है मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट होने के बाद, उसको हम टारगेट प्रोग्राम्स बोलते हैं. नाउ
सिस्टम प्रोग्रामिंग हम क्यों करते हैं? सिस्टम प्रोग्रामिंग हम इसके लिए करते हैं ताकि हम डिफरेंट सॉफ्टवेयर अवेलेबल कर सके फॉर द हार्डवेयर अवेलेबल इन द सिस्टम्स, बिकॉज देयर आर मेनी हार्डवेयर जिनको रन करने का भी डिवाइस ड्राइवर्स है, डिफरेंट डिवाइसेस हमने यहाँ पे डाले हुए हैं, बट वो डिवाइस ड्राइवर्स के सॉफ्टवेयर होने बहुत जरूरी है ताकि वो प्रॉपरली उन डिवाइस को इंस्टॉल कर सके और उनको प्रॉपरली यूज कर सके। या अब स्पेक्ट्रम ऑफ लैंग्वेज प्रोसेसर्स, यानी क्या क्या प्रोसेसेस गो थ्रू, क्या क्या स्टेप्स हम करते हैं। फर्स्ट, लैंग्वेज प्रोसेसेस में क्या क्या होता है? फर्स्ट इज अ लैंग्वेज ट्रांसलेटर, देन वी हैव अ डी ट्रांसलेटर एंड देन वी हैव अ प्री प्रोसेसर। अब लैंग्वेज ट्रांसलेटर का काम है कि प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को एग्जीक्यूशन डोमेन के लैंग्वेज में कन्वर्ट करना, यानी हाई लेवल लैंग्वेज को लो लेवल लैंग्वेज में कन्वर्ट करना। डी ट्रांसलेटर का भी काम वही है, जस्ट इन द रिवर्स डायरेक्शन। क्यों? क्योंकि प्रोग्राम अगर एग्जीक्यूट हो गया तो उसका रिजल्ट भी तो देना पड़ता है, तो जब रिजल्ट आता है वो मशीन लैंग्वेज में होता है, तो उसको एक गिवन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में कन्वर्ट करके ही हम यूजर को डिस्प्ले कर सकते हैं। सो दैट्स व्हाई वी रिक्वायर ट्रांसलेटर एंड डी ट्रांसलेटर। प्री प्रोसेसर एक होता है, प्री प्रोसेसर इज यूज्ड टू ब्रिज द गैप बिटवीन द एग्जीक्यूशन डोमेन्स। जैसे हमने बोला था कि इनपुट प्रोग्राम इन द सोर्स प्रोग्राम, जो भी कन्वर्जन है ट्रांसलेटिंग डी ट्रांसलेटिंग वो होता है। प्री प्रोसेसर पर्टिकुलर लैंग्वेज में कन्वर्ट करता है, अब सी में कन्वर्ट करना है, सी प्लस प्लस में कन्वर्ट करना है, उस हिसाब से वो कन्वर्ट करता है, यानी ट्रांसलेट डी ट्रांसलेट एंड वॉट एवर एक्स्ट्रा फाइल्स आर नीडेड, एंड कन्वर्ट करने के बाद इसको टारगेट प्रोग्राम में डालता है। दैट कन्वर्टेड प्रोग्राम इज नथिंग बट कॉल्ड एज द टारगेटेड प्रोग्राम। नेक्स्ट वी हैव लैंग्वेज प्रोसेसिंग एक्टिविटीज की एग्जैक्टली इनमें क्या क्या लैंग्वेज प्रोसेसिंग, जब हम बात करते हैं कि ये प्रोसेसर्स क्या क्या एक्टिविटीज करते हैं। So they perform basically two activities. First is program generation, second is program execution. Program generation is the target program basically which is generated in machine language by accepting the specification of the source program. मतलब ये ओरिजिनल प्रोग्राम हाई लेवल लैंग्वेज में, इंग्लिश में, या जो भी प्रोग्रामिंग हम पाइथन यूज कर रहे हैं, जावा, सी, सी प्लस प्लस, जो भी प्रोग्राम हमने लिखा है वो उसमें क्या क्या लिखा है, कैसे कैसे एग्जीक्यूट होना है, वो एज अ सोर्स प्रोग्राम एक्सेप्ट करता है, उसको ट्रांसलेट करता है मशीन लैंग्वेज में। यानी प्रोग्राम जनरेटर क्या करता है, उसको ट्रांसलेट करने में हेल्प करता है, उसमें कुछ एरर्स वगैरह है कि नहीं वो चेक करता है। अगर कुछ एरर्स वगैरह नहीं हुआ सो इट जनरेट्स दैट प्रोग्राम इनटू दी लो लेवल लैंग्वेज which is then sent to the execution domain as a target program. So source program is nothing but the original program. Target program is nothing but the converted program in the required machine language. Next comes the programming execution. अब program execution is further divided into two parts. एक है program translation, एक है program interpretation. अभी translation में क्या क्या होता है? When we say that it has to be converted, converted का मतलब होता है उसको translate करना पड़ता है. So translating it in the machine language which is required by that system. हर एक system का machine language can be different depending upon what OS they are using, what different types they are using. So translation of a program should be done before it is executed. Obvious है क्योंकि execution low level languages में होगा, machine languages में होगा, क्योंकि कंप्यूटर को वो लैंग्वेज समझ में नहीं आता है कौन सा जो हम क्रिएट करते हैं, तो जो कंप्यूटर को समझे वो लैंग्वेज में पहले ट्रांसलेट करना पड़ेगा बिफोर एक्सिक्यूटिंग, एंड दैट ट्रांसलेटेड प्रोग्राम नीड्स टू बी सेव्ड, क्योंकि अगर बार बार रेपिटेटिव एक्सिक्यूशन हुआ, सेम फाइल सेम प्रोग्राम्स का एक्सिक्यूशन मोर देन वंस हुआ, देन वी नीड नॉट गेट इट अगेन एंड अगेन, सो उसको सेव करना भी जरूरी है। एंड आफ्टर दैट वी नीड टू रीट्रांसलेट द प्रोग्राम इफ देयर आर एनी चेंजेस, यानी सोर्स प्रोग्राम में ही हमने कुछ ऐड डिलीट किया, थोड़ा सा भी मॉडिफिकेशन किया, तो अगेन दैट प्रोग्राम हैज टू बी रीट्रांसलेटेड, यानी एक बार ट्रांसलेट हो भी चुका होगा, बट बिकॉज द सोर्स प्रोग्राम में has made some changes, it has to be retranslated into machine language and then it has to be made that target program जिससे हम execute कर सके. So while translating there can be errors. Converting into the machine language जो भी डेटा हमको चाहिए मेमोरी से लाना है देना है वो सब यहाँ पे परफॉर्म होता है. Interpretation is nothing but फाइंडिंग द मीनिंग कि एग्जैक्टली क्या लिखा है, क्या करना है, कहाँ से डेटा लाना है, कौन से स्टेप के बाद कौन सा स्टेप एग्जीक्यूट करना है, ये सब चीजें. सो इट इज बेसिकली फेचिंग द कोड, एनालाइजिंग द कोड एंड एग्जीक्यूटिंग द मीनिंग ऑफ द कोड, कि जो जैसे दिया है स्टेप बाय स्टेप उसको सिर्फ एग्जीक्यूट करें. सो दिस वाज ऑल अबाउट लैंग्वेज प्रोसेसर्स. आई होप इट इज क्लियर. Next video we'll see what are the introductions to various system programs, that is assemblers क्या होता है, loaders linkers क्या होता है, वो सब.